transcendental equation and their convergence for numerical and C programming. Subject and transcendental equation definition: if fx also contains trigonometric, hyperbolic, inverse trigonometric, log function, exponential function, etc., then the equation fx is equal to 0 is known as transcendental equation. So if fx also contains trigonometric, hyperbolic, inverse trigonometric, log function, exponential function, etc., then the equation fx is equal to 0 is known as transcendental equation. So example: 2x is equal to cos x plus 3x minus root of 1 plus sin x is equal to 0, and 2x minus log 10x is equal to 7, and x ex is equal to cos x. ये सारे ट्रांसीडेंटल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं. So the transcendental equation is solved using the following method. ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज़ करते हैं. First, bisection method, second, regular Falsy method, and the third, Newton-Raphson method. So first, bisection method. Bisection method का definition: this method is based on repeated application of the intermediate value property. So bisection method का definition: this method is based on repeated application of the intermediate value property. So next हम इसका working rule देखेंगे bisection method का. So first, step 1, let fx is equal to 0 be the given equation. Find a and b such that fa is less than 0 and fb is greater than 0. And step 2, find first approximate value by using bisection method. So x1 is equal to a plus b upon 2. Calculate fx1 and examine its sign. fx1 कैलकुलेट करेंगे और उसका साइन एग्जामिन करेंगे. सो स्टेप 2.1, if fx1 is less than 0 then root lies between b and x1, and second,
approximate value and second approximate value is given by x2 is equal to b plus x1 upon 2 and step 2.2, if fx1 is greater than 0 then root lies between a and x1 and second approximate value is given by x2 is equal to a plus x1 upon 2. In this equation, calculate fx2 and examine its sign. So, repeat step 2.1 and 2.2 until required accuracy of root. ये प्रोसेस हम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमें 3 डेसिमल तक अप्रॉक्सीमेट रूट ना मिल जाए, करेक्ट अप्रॉक्सीमेट डेसिमल रूट ना मिल जाए. एंड सेकेंड, बाइसेक्शन मेथड का ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बाइसेक्शन मेथड इन दिस इज द एक्स एक्सिस. सो हमेशा हमारा जो रूट है वो अपोजिट साइन और एक अपोजिट और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन के बीच में होगा. सो यहाँ पे हम एक वैल्यू एक्स एक्सिस में एक वैल्यू हम ऐसी लेते हैं ए जो कि नेगेटिव होगी और एक वैल्यू बी जो कि पॉजिटिव होगी, और एक्स एक्सिस में हमारा ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू एफ एक्स में कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कट करेगा एक्स एक्सिस को. ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है, हमारा रूट उसी के पास मिलेगा. सो हम इसी तरह x1 x2 एंड x3 निकालते जाएंगे और हमारा करेक्ट डेसिमल रूट जब तक हमें 3 डेसिमल रूट में ना मिल जाए तब तक हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, और जब तक हमारा ये रूट मिल जाएगा तब तक हम यही हमारी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएटेड वैल्यू प्रॉपर्टी कहलाती है इन दिस फिग कर्व ऑफ बाइसेक्शन मेथड. सो नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Find the root of the equation x cube minus 4x minus 9 is equal to 0 using the bisection method correct to 3 decimal places. So हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. जब हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0 माइनस 9, so result is minus 9, this negative, and put x is equal to 1 in this equation. So f1 is equal to 1 cube minus 4 into 1 minus 9 is equal to 1 minus 4 minus 9 is equal to 1 minus 13. So हमारी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -12. This value is negative, and put x is equal to 2 in this equation. f2 is equal to 2 cube minus 4 into 2 minus 9. So 8 minus 8 minus 9. This is the value is negative, and put x is equal to 3 in this equation. सो हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे अब. तो 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9, सो 27
minus 12 minus 9 is equal to plus 6 positive in this equation. सो हमारा रूट F2 और F3 में बिलोंग करेगा. F3 में 2 और 3 के बीच में रूट होगा. हेंस द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3. So now we will get approximate value of root by using बाइसेक्शन मेथड. सो हमारा रूट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बिलोंग करता है. सो हमने 2 और 3 के बीच में रूट ले लिया है. सो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज x1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2. सो हमारी a की वैल्यू होगी 2 एंड b की वैल्यू होगी 3. सो 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2.5. अब हम इसको वैल्यू चेक करेंगे. सो f 2.5 इज इक्वल टू 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9. f 2.5 is equal to minus 3.375. This value is negative. And second approximate root value, second approximate value x2 हमारा 2.5 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा. सो 5.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.75 x2 की वैल्यू. अब f 2.75 पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. सो f 2.75 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9. सो f 2.75 is equal to 0.7969. This value is positive. And third approximate root, approximate value. सो हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है x3 इज इक्वल टू 2.75 प्लस 2.5 अपॉन 2. हमारी वैल्यू जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बिलोंग करेगी. तो एक हमारा ये नेगेटिव हो गया और एक हमारा पॉजिटिव. तो x2 की वैल्यू होगी 2.75 एंड x1 की वैल्यू होगी 2.5. सो इज इक्वल टू 5.25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.625. एंड इस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. 2.625 इज इक्वल टू 2.625 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9. f इंटू 2.625 इज इक्वल टू माइनस 1.4121. दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव. हमारा रूट जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में लाई करेगा. सो हमारी एक वैल्यू इज़ नेगेटिव एंड एक वैल्यू होगी पॉजिटिव. सो फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x4 is equal to 2.625 plus 2.75 upon 2 is equal to 5.375 upon 2. So x4 is equal to 2.6875. अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. f 2.6875 is equal to 2.6875 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9. f इंटू 2.6875 is equal to minus 0.3391. This value is negative and this value is negative.
सो हमारा रूट जो है x4 और x2 पे बिलोंग करेगा। 5th अप्रॉक्सीमेट रूट वैल्यू, so x5 is 2.6875 plus 2.75 upon 2 is equal to 5.4375 upon 2 is equal to, so x5 is equal to 2.7187। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। सो f 2.7187 इज इक्वल टू 2.7187 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7187 माइनस 9। सो f 2.7187 की वैल्यू होगी 0.297। दिस वैल्यू इज़ पॉजिटिव। सो हमारा रूट जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे बिलोंग करेगा। सो 6 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x6 इज इक्वल टू 2.7187 प्लस 2.6875 x4 पे बिलोंग करेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म पे बिलोंग करेगी। सो हमारी वैल्यू इतनी हो जाएगी इज इक्वल टू 5.4062 अपॉन 2। सो x6 इज इक्वल टू 2.7031। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। सो f 2.7031 is equal to 2.7031 cube minus 4 into 2.7031 minus 9। f 2.7031 is equal to, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.0616। दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड 7th अप्रॉक्सीमेट रूट इज, so 7th approximate value is x7 is equal to 2.7031. This value is x1 and second value is 2.7187. This is the value is x5. So x7 value is 2.7109 एंड इस पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f 2.7109 इज इक्वल टू 2.7109 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7109 माइनस 9। सो जब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 2.7109 इज इक्वल टू 0.0787। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। नेक्स्ट 8th approximate वैल्यू। सो नेक्स्ट हमारा वैल्यू जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे बिलोंग करेगा, तो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे x7 की वैल्यू और x6 की वैल्यू। सो 2.7109 x8 इज इक्वल टू 2.7109 अपॉन 2 प्लस 2.7031 x6 की वैल्यू is equal to 5.414 upon 2 is equal to 2.7070। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f इंटू 2.7070 is equal to 2.7070 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7070 माइनस 9। f into 2.7070 is equal to 0.084। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। सो अब हमारा रूट है जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे बिलोंग करता है, तो नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम 9th अप्रॉक्सीमेट रूट वैल्यू। सो x9 इज इक्वल टू, हम x8 की वैल्यू लेंगे 2.70
70 प्लस 2.7031 एंड x6 की वैल्यू लेंगे जो कि एक नेगेटिव है, इज इक्वल टू 5.4101 अपॉन 2 इज इक्वल टू x9 इज इक्वल टू 2.7050। सो हम अब इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। 2.7050 इज इक्वल टू 2.7050 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7050 माइनस 9। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। 2.7050 इज इक्वल टू माइनस 0.0275। दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। तो अब हमारा रूट जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच बिलोंग करता है। सो 10th अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ वैल्यू। सो x10 इज इक्वल टू, हम x9 की वैल्यू लेंगे 2.7050 प्लस x8 की वैल्यू लेंगे 2.7070 अपॉन 2। सो इज इक्वल टू 5.412 अपॉन 2 इज इक्वल टू x10 इज इक्वल टू 2.7060। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f 2.7060 इज इक्वल टू 2.7060 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7060 माइनस 9। सो f 2.7060 इज इक्वल टू माइनस 0.0275 माइनस 0.0275 माइनस नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। सो हम x11 की वैल्यू निकालेंगे। सो 11th approximate value is equal to x11। so x10 की वैल्यू लेंगे 2.7060 प्लस अपॉन 2, और नेक्स्ट रूट जो है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में, तो 2.7070 एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में बिलोंग करता है, इसीलिए इज इक्वल टू 5.413 अपॉन 2। सो x11 इज इक्वल टू 2.7065। अब इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f 2.7065 इज इक्वल टू 2.7065 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.7065 माइनस 9। f इंटू 2.7065 इज इक्वल टू, इस पर फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस 0.06। दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव। सो नेक्स्ट अब हम 12th अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो x12 इज इक्वल टू 2.7065 हमने इसकी वैल्यू ली, प्लस 2.7070 एंड x8 की वैल्यू ली, इज इक्वल टू 2। सो 5.4128 अपॉन 2 इज इक्वल टू x12 इज इक्वल टू 2.7064। सो हमारी जो वैल्यू है वो हमारे 3 डेसिमल करेक्ट रूट में आ गई है। दिस वैल्यू इज, एंड ये वैल्यू भी आ गई है। सो हैंस द करेक्ट रूट इज 2.7064। This is the answer. Second, regular falsi method or false position method. So इसका definition, this is the oldest method of finding the real root of an equation fx is equal to 0 and closely resembles the bisection method. So next हम इसका वर्किंग रूल देखेंगे।
So step 1, let fx is equal to 0. This is equation number first. B, the given equation and find x0 and x1 such that fx0 is less than such that fx0 is less than 0 and fx1 is greater than 0. Then root lies between x0 and x1. So this is the step 1. And step 2, find first approximate root by using regular falsi method. x2 is equal to x0 minus x1 minus x0 upon fx1 minus fx0 into fx0. This is the फार्मूला ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, जिससे हम आगे रूट फाइंड आउट करते जाएंगे. एंड फाइंड fx2 and examine its sign. So next step 3.1 is equal to if fx2 is less than 0, so then replace x0 is equal to x2. जब जिस कंडीशन में x2 की वैल्यू वो 0 से लेस देन होगी तो हम x0 इज इक्वल टू x2 रिप्लेस करेंगे. एंड स्टेप 3.2 इज इक्वल टू इफ fx2 is greater than 0, then replace x1 is equal to x2. जिस कंडीशन में x2 जो है 0 से ग्रेटर देन रहेगा, देन हम रिप्लेस करेंगे x1 इज इक्वल टू x2. एंड स्टेप 3.3 फाइंड सेकेंड approximate root by using regular falsi method. So x2 is equal to x0 minus x1 minus x0 upon fx1 minus fx0 into fx0. This is the equation. And find fx2 and repeat step 3 until the required accuracy of root. So हम स्टेप 3 fx2 फाइंड करेंगे एंड रिपीट स्टेप 3 until the required accuracy of root. सो नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देखेंगे. सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड. हम एक्स एक्सिस पे ऐसी वैल्यू हमारा जो वैल्यू लेंगे x0 एंड x1 हमारा जो रूट है जो इसी दोनों के बीच में बिलोंग करेगा. तो x2 लेंगे एक पॉइंट, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x3 लेंगे. हम जो रूट फाइंड आउट करते जाएंगे उसके बाद जहाँ पे ये ग्राफ कटेगा x एक्सिस में वही हमारा मेन पॉइंट, वहीं पे हमारा एग्जैक्ट रूट निकलेगा. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ a x0 एंड fx0. So this is the curve of regular falsi method and this point is px. हम इसका रेगुलर फाल्सी मेथड का कर्व देख लिए. एंड नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे.
Find the real root of equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 using regular falsi method. So solve this equation. Let fx is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0, equation number first, and put x is equal to 0 in given equation. We get, हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन में. f0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव माइनस 5. दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन. We get f1 is equal to 1 cube minus 2 into 1 minus 5 is equal to 1 minus 2 minus 5 minus 6. This value is negative and put x is equal to 2 in given equation. We get, अब f2 वैल्यू पुट करेंगे. सो 2 क्यूब minus 2.1 minus 5 is equal to minus 1. This value is negative and put x is equal to 3 in given equation. We get f3 is equal to 3 cube minus 2.3, 2 into 3 minus 5 is equal to 16. This value is positive. So हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. Hence the root lies between 2 and 3. So हम लंबा प्रोसीजर हो जाएगा अगर हम 2 को और 3 को लेंगे. सो हम फर्स्ट रूट लेंगे 2 और 2.1 के बीच में. सो पुट x इज इक्वल टू 2.1 in given equation. We have, so f 2.1 is equal to 2.1 cube minus 2 into 2.1 minus 5. So f 2.1 is equal to plus 0.61. This value is positive. So hence function of f2 is less than 0 and function of f 2.1 is greater than 0. Hence the root lies between 2 and 2.1. सो अब हमारा रूट जो है 2 और 2.1 के बीच में बिलोंग करेगा. सो हम लेंगे टेकिंग बिटवीन x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 2.1 एंड फंक्शन ऑफ fx0 की वैल्यू होगी हमारी 2 पे हम वैल्यू लिए हैं कितना -1 एंड fx1 पे हम वैल्यू लिए हैं प्लस 0.61. सो हमारा मेथड हो जाएगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. हमारा फार्मूला है x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0. हम एक फार्मूला में वैल्यू पुट अप करेंगे. सो x2 इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू है 2 माइनस 2.1 माइनस 2 अपॉन fx1 की वैल्यू होगी 0.61 माइनस fx0 की वैल्यू -1. एंड सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस
1/1.61. So next x2 is equal to 2.0621. This is the value of x2. So हमें अब वैल्यू मिल गया x2 इज इक्वल टू 2.0621. सो हम इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे fx2 इज इक्वल टू 2.0621 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0621 माइनस 5. सो f 2.0621 is equal to minus 0.3556. This value is negative, and second approximate value सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हमारा हो जाएगा x नॉट इज इक्वल टू 2.0021 एंड x1 इज इक्वल टू 2.1. सो fx0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.3556. सॉरी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 2.0621 एंड fx1 की वैल्यू हो जाएगी 0.61 जो हमने इसके पहले इक्वेशन में निकाला था. तो इसलिए x2 इज इक्वल टू x नॉट माइनस 2.0621 माइनस x नॉट माइनस x1 माइनस x0 2.1 माइनस 2.0621 अपान 0.61 माइनस 0.03556 and multiply minus 0.03 minus 0.35 and 56. So x2 is equal to, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तब वैल्यू 2.076 आ जाएगी. एंड हम इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 2.076 इज इक्वल टू 2.076 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.076 माइनस 5. सो f 2.076 पे फंक्शन की वैल्यू हम चेक करेंगे तब मिलेगा माइनस 0.2049. दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव. एंड अब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे. तो थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए x नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.076, क्योंकि हमें एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव के बीच में लेना है रूट को, तो एक नेगेटिव. एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 2.1 जिसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली थी. सो fx0 इज इक्वल टू माइनस 0.2049 एंड fx1 इज इक्वल टू 0.61. सो नेक्स्ट फिर हम सूत्र में फार्मूला में पुटअप करेंगे वैल्यू 2.076 माइनस 2.1 माइनस 2.076 माइनस 0.61 माइनस 0.2049 इज इक्वल इंटू माइनस 0.2049. सो x3 इज इक्वल टू 2.1362. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू देगा. सो हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 2.1362 इज इक्वल टू 2.1362 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1362 माइनस 5. So f 2.1362 is equal to 0.475 at this value is positive. So next हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे. So फोर्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.076 जो हम x2 की वैल्यू लिए हैं क्योंकि इस वैल्यू पे हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है. सो x1 इज इक्वल टू 2.1362 एंड फंक्शन ऑफ fx0 इज इक्वल टू माइनस 0.2049 एंड fx1 इज इक्वल टू, सो fx1 पे वैल्यू मिलेगी हमें
0.4758 से हमारा x4 इज इक्वल टू 2.076 माइनस 2.1362 माइनस 2.076 अपान फंक्शन की वैल्यू 0.4758 माइनस 0.2049 इंटू माइनस 0.2049। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x4 इज इक्वल टू 2.0940। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x4। अब हम इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। 2.0940 इज इक्वल टू 2.0940 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0940 माइनस 5। सो f 2.0940 is equal to minus 0.0062. This value is negative and fifth approximate value is हमारा फाइव अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए x नॉट इज इक्वल टू 2.094 ये वाली वैल्यू हो जाएगी x4 की वैल्यू, एंड x1 इज इक्वल टू 2.1362 एंड फंक्शन ऑफ fx0 इज इक्वल टू माइनस 0.0062 एंड fx1 इज इक्वल टू 0.4758। सो नेक्स्ट हम वैल्यू पुट अप करेंगे इन इक्वेशन। So x5 is equal to 2.094 minus 2.1362 minus 2.094 अपान हम fx1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.4758 माइनस 0062 इंटू माइनस 0.0062। सो हम x5 इज इक्वल टू 2.0945। हमें 3 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल चुका है क्योंकि x4 की वैल्यू भी 2.0940 आई और x5 की वैल्यू भी 2.0945 आई। सो हमारा हेंस अप्रॉक्सीमेट value of root correct to 3 decimal place is x is equal to 2.094। यही हमारा करेक्ट 3 डेसिमल रूट हो जाएगा। दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड हो जाएगा न्यूटन रैप्सन मेथड। सो हम इसकी डेफिनेशन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन। सो नेक्स्ट हम इसका वर्किंग रूल देखेंगे। So this is also one of the method of finding approximate root of equation in Newton Raphson method का definition हो गया और working principle देखेंगे। So first step one is equal to let fx is equal to 0 be the given equation, find initial root x0 such that fx0 to 0। सो हम पहले fx0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, बी द इक्वेशन फाइंड करेंगे जो दिया है इक्वेशन। फाइंड इनिशियल रूट x0 सच दैट fx0 टू 0। सो स्टेप 2, फाइंड f डैश x0 एंड हम f डैश x0 फाइंड करेंगे एंड स्टेप 3, फाइंड
फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट by using न्यूटन रैप्शन मेथड। सो हमारा फार्मूला हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स ज़ीरो अपान एफ डेज एक्स ज़ीरो। हम इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा वैल्यू मिलेगा। फाइंड एफ एक्स वन एंड एफ डेज एक्स वन फाइंड करेंगे फर्स्ट वैल्यू के लिए। एंड स्टेप 4 सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट x2 इज इक्वल टू x1। सो वैल्यू के लिए x1 माइनस एफ एक्स वन अपान एफ डेज x1 हो जाएगा हमारा फार्मूला x2 के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप, सो हमारे स्टेप 5 हो जाएगा थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ एक्स टू अपान एफ डेज x2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। सो सिमिलरली we can find root approximate root correct up to required accuracy। सो हम तब तक इस रूट को, इस प्रोसेस को दोहराएंगे तब तक जब तक कि हमारा करेक्ट अप टू रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक रूट ना निकल जाए। सो इन जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म होता है, नाउ इन जनरल फॉर्म एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डेज एक्स एन। सो दिस इज द मेथड ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड। एंड नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देखेंगे। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड ओ इज द ओरिजिन। सो हम एक्स नॉट एंड एक्स टू एंड अल्फ़ा के बीच में एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो जिस वैल्यू से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते जाते हैं x1 एंड x2, और जहाँ पे हमें 3 डेसिमल तक करेक्ट रूट मिलता है वही हमारा अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट रूट होता है। एंड अल्फ़ा लेते हैं, जो अल्फ़ा इधर से जाते हुए यहाँ पे कटता है, अल्फ़ा एंड एक्स ज़ीरो जिस पॉइंट पे कटते हैं वही हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो इक्वेशन बनता है। एंड a इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो इज़ द फंक्शन। एंड a1 टू x1 से जिस पॉइंट जो मिलता है उसे हम a1 कहते हैं, और x2 से जो पॉइंट मिलता है उसे a2 कहते हैं। एंड दिस इज़ द कर्व ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड। सो नेक्स्ट हम इससे क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। So find the correct root of equation x4 x power 4 minus x minus 10 is equal to 0 correct to 3 decimal place using Newton Raphson method। So first हमारा प्रोसेस हो जाएगा, let fx is equal to x की पावर 4 minus x minus 10 is equal to 0 in first equation। So put x is equal to 0 in given equation, we get, तो हम जब ज़ीरो पुट करेंगे तब f0 इज इक्वल टू 0 पावर 4 माइनस 0 माइनस 10, तब हम वैल्यू मिलेगी -10 जो कि नेगेटिव है। एंड पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, वी गेट f1, हम 1 पुट करेंगे x की जगह, तो 1 की पावर 4 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू -10 वैल्यू मिलेगा जो वैल्यू नेगेटिव है। एंड पुट नेक्स्ट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, एंड वी गेट f2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू +4। दिस इज द वैल्यू इज नेगेटिव पॉजिटिव। सो हमारा जो रूट है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में बिलोंग करेगा। सो f1 एंड 2 रूट लेस बिटवीन, हमारा रूट जो है 1 एंड 2 के बीच में बिलोंग करेगा। सो 1 एंड 2। सो हम अब
डेज एक्स निकाल सकते हैं। एफ डेज एक्स इज इक्वल टू 4x³ -1 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू x³ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। सो 4x³ -1 हो जाएगा उसका एफ डेज एक्स जब निकालेंगे तब। सो देन आल्सो फार्मूला, तो हम इसका फार्मूला पुट करेंगे xn+1 हो जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डेज एक्स 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इस इक्वेशन में हम पुटिंग n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, अब हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट जब हम इस पे ज़ीरो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 0, तब हमें x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डेज एक्स 0 मिलेगा हम इस फार्मूला। सो नेक्स्ट x0 इज इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड x1 इज इक्वल टू हम फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस एफ एक्स 0 की वैल्यू हो जाएगी 4। सो एफ डेज x1 लेना है, x0 लेना है हमें, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2³ -1। सो x0 इज इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 माइनस 4 अपॉन 31। सो x1 इज इक्वल टू 58 अपॉन 31, तो वैल्यू हमें मिलेगी। सो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, in equation first and second approximate root। सो x2 इज इक्वल टू 1.871 जो कि x1 की वैल्यू है, माइनस f 1.871 अपॉन f डेज 1.871। सो x2 इज इक्वल टू 1.871 माइनस f 1.871 की वैल्यू हो जाएगी 1.871 की पावर 4 माइनस 1.871 माइनस 5 माइनस 10 अपॉन 4 इंटू 1.871 क्यूब -1। सो नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी 1.856, एंड नेक्स्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। सो x3 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस एफ एक्स 2 अपॉन एफ डेज x2। सो नेक्स्ट हो जाएगा 1.856 माइनस एफ 1.856 अपॉन एफ डेज 1.856। सो नेक्स्ट 3 इज इक्वल टू 1.856 माइनस, हम इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। सो 1.856 की पावर 4 माइनस 1.856 माइनस 10 अपॉन 4 इंटू 1.856 माइनस 1। सो जब हम x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.856, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब -0 आएगा। सो x3 इज इक्वल टू 1.856, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x3, एंड हमारा x2 की वैल्यू भी 1.856 डेसिमल तक करेक्ट आई है। सो हेंस x2 is equal to x3, then the approximate root is, correct approximate root हो जाएगा x is equal to 1.856. this is the answer in this question. So next हम देखेंगे rate of convergence of bisection method. Bisection method का rate of convergence. So let fx is equal to 0 be a equation and alpha be the exact root of f alpha is equal to 0 in this equation. So let
epsilon be the error. Now we have xn plus 1 is equal to xn minus 1 plus xn upon 2. Equation number first, we know that in bisection methods formula, so epsilon n plus 1 is equal to xn plus 1 minus alpha, और xn plus 1 is equal to epsilon n plus 1 plus alpha हो जाएगा. So similarly epsilon n is equal to xn minus alpha and xn is equal to epsilon plus alpha हो जाएगा, and xn minus 1 is equal to epsilon n minus 1 plus alpha हो जाएगा. So now put in equation first में हम xn minus 1 की वैल्यू पुट करेंगे. So epsilon n plus 1 plus alpha is equal to epsilon n minus 1 plus alpha plus epsilon n plus alpha upon 2. So ये ऐड हो जाएगा, तो epsilon n plus 1 plus alpha is equal to 2 alpha plus epsilon n plus epsilon n minus 1 upon 2 हो जाएगा. epsilon n plus 1 and epsilon n plus 1 plus alpha is equal to alpha plus epsilon n plus epsilon n minus 1 upon 2. ये जो है 2 कॉमन निकल जाएगा एंड अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा. सो नेक्स्ट अल्फ़ा n प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा n अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 अपॉन 2 बच जाएगा. सो नेक्स्ट नेगलेक्टिंग एप्सिलॉन n माइनस 1, हम एप्सिलॉन n माइनस 1 अपॉन 2 को नेगलेक्ट कर देंगे. सो एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन n बच जाएगा. सो एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू a एप्सिलॉन n एंड एप्सिलॉन n प्लस 1 नियरेस्ट a एप्सिलॉन n की पावर k, तो k इज इक्वल टू 1 मानेंगे. सो epsilon n plus 1 proportional to epsilon n. So rate of convergence of bisection method is linear. bisection method का convergence जो है linear होता है, ये proof होता है in this equation. नेक्स्ट हम देखेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड. रेगुलर फाल्सी मेथड के कन्वर्जेंस के लिए हम करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी ए इक्वेशन, लेट अल्फा बी एग्जैक्ट रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. सो हमारा फंक्शन ऑफ एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड एक्स एन बी डिफर फ्रॉम अल्फा बाई ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ई एन. सो एक्स एन इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस ई एन, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन प्लस 1. सो रेगुलर फाल्सी मेथड फार्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 1 एफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन एफ एक्स एन माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, पुट द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशन. सो ये एक्स एन प्लस 2 हो जाएगा जब इसमें एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 पुट करेंगे. सो एक्स एन प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स एन एफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एफ एक्स एन इन इक्वेशन नंबर 2. सो पुट इक्वेशन सेकेंड द वैल्यू ऑफ एक्स एन प्लस 2. सो ई एन प्लस 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस ई एन एफ इंटू अल्फा प्लस ई एन प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस ई एन प्लस 1 एफ इंटू अल्फा प्लस ई एन. सो एफ function of f is equal to f into alpha plus en plus 1 minus f alpha plus en. so next हो जाएगा en plus 2 plus alpha is equal to alpha f into e alpha plus en plus 1 minus alpha f into alpha plus en f plus en f into alpha plus en plus 1 minus en plus 1 f into alpha plus en upon f alpha plus en plus 1 minus f alpha plus en. so next हो जाएगा अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि हम इस इक्वेशन से इसको क्रॉस कर दिए. एंड नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस ई एन इंटू एफ इंटू अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 1 माइनस ई एन प्लस 1 एफ अल्फ़ा प्लस ई एन. सो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा अपान एफ अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 1 माइनस एफ अल्फ़ा प्लस ई एन एक्सपेंड बाई टायलर थ्योरम. सो ई एन प्लस 2 इज इक्वल टू ई एन एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस 1 एफ डेज अल्फ़ा प्लस ई स्क्वायर एन प्लस 1 अपान 2 एफ डबल डेज अल्फ़ा प्लस ई क्यूब एन प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल प्लस ई क्यूब एन प्लस 1 अपान 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेज अल्फ़ा
minus en plus 1 into f of alpha plus en f dash alpha plus e square n upon 2 factorial f double dash alpha plus e cube n upon 3 factorial f double dash alpha plus dash dash dash। एक्सपेंड करेंगे टाइलर थ्योरम से तो हो जाएगा अपान एफ ऑफ अल्फा प्लस ई एन प्लस वन एफ डेज अल्फा प्लस ई स्क्वायर एन प्लस वन अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेज अल्फा माइनस ई क्यूब एन प्लस वन अपान 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डेज अल्फा प्लस डैश 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 माइनस एफ अल्फा प्लस ई एन एफ डेज अल्फा प्लस ई स्क्वायर एन अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डेज अल्फा प्लस ई क्यूब एन अपान 3 फैक्टोरियल एफ डबल डेज अल्फा माइनस डैश डैश डैश। So f alpha is equal to 0 and neglecting higher power of e square n e cube n and e के पावर 4n को नेग्लेक्टिंग करेंगे हायर पावर को। सो ई एन प्लस टू इज इक्वल टू ई एन प्लस वन एफ डेज अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एन प्लस वन अपान टू एफ डबल डेज अल्फा माइनस ई एन प्लस वन ई एन एफ डेज अल्फा माइनस ई एन प्लस वन अपान टू ई एन स्क्वायर एफ डबल डेज अल्फा अपान ई एन प्लस वन एफ डेज अल्फा प्लस ई स्क्वायर एन प्लस वन अपान टू एफ डबल डेज अल्फा माइनस ई एन एफ डेज अल्फा up minus e square n upon 2 f double dash alpha is equal to en plus 1 f double dash into en plus 1 minus en। ये कॉमन निकल जाएगा ई एन इंटू ई एन प्लस वन एफ डबल डेज अल्फा इन दिस इक्वेशन। सो एफ डेज अल्फा इंटू ई एन प्लस वन माइनस ई एन प्लस एफ डबल डेज अल्फा अपॉन टू इंटू ई स्क्वायर एन प्लस वन माइनस ई स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ई एन प्लस टू इज इक्वल टू ई एन प्लस वन एफ डबल डेज अल्फा इंटू ई एन प्लस वन माइनस ई एन जो कॉमन निकला है अपॉन टू ई एन प्लस वन माइनस ई एन इंटू एफ डेज अल्फा प्लस एफ डबल डेज अल्फा अपॉन टू इंटू ई एन प्लस वन प्लस ई एन। सो नेक्स्ट ई एन प्लस वन अपॉन टू इंटू एफ डबल डेज अल्फा अपॉन एफ डेज अल्फा इंटू वन प्लस एफ डेज अल्फा अपॉन टू एफ डेज अल्फा इंटू ई एन प्लस वन प्लस ई एन की पावर माइनस वन। सो हम जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तब ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू ई एन प्लस वन अपॉन टू एफ डबल डेज अल्फा अपॉन एफ डेज अल्फा ई इंटू वन माइनस एफ डबल डेज अल्फा अपॉन टू एफ डेज अल्फा इंटू ई एन प्लस वन प्लस ई एन प्लस डैश डैश डैश। सो नेक्स्ट हो जाएगा इसके आगे का प्रोसीजर ई एन प्लस टू नियरेस्ट ई एन प्लस वन एफ डबल डेज अल्फा अपॉन टू एफ डेज अल्फा। सो ई एन प्लस टू nearest m en plus 1 in equation number 2 we know that the rate of convergence en plus 1 is equal to a en की power k en is equal to an plus 1 upon a to the power 1 upon k en plus 2 is equal to a e की power k n plus 1 from equation second हो जाएगा। so m en plus 1 is equal to a en plus 1 so m इंटू ई एन प्लस वन अपान ए की पावर वन अपान के ई एन प्लस टू की ई एन की वैल्यू रख देंगे। सो इंटू ई एन प्लस वन इज इक्वल टू ई एन प्लस वन की पावर के एम ए की पावर माइनस वन अपान के इंटू ई की पावर वन अपान के प्लस वन इंटू ई एन प्लस वन इज इक्वल टू ए ई की पावर के एन प्लस वन अपान। सो हम इसका बाकी वैल्यू छोड़कर सिर्फ पावर को लेंगे वन अपान के प्लस वन इज इक्वल टू के। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस वन हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे हम सूत्र अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य का इसलिए के इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट ऑफ वन प्लस फोर अपान टू। सो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट ऑफ फाइव अपान टू। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तब के इज इक्वल टू 1.618 द रेट ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड इज 1.618 हो जाएगा। दिस इज प्रूव्ड। सो नेक्स्ट हम देखेंगे रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेपशन मेथड। सो इसके लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज गिवन इक्वेशन एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन। नाउ वी नो दैट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डेज एक्स एन इन न्यूटन रेपशन फार्मूला। क्लियरली एप्सिलॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा। सो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस अल्फा हो जाएगा। एंड सिमिलरली एक्स एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा। पुट दैम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन
n plus alpha minus epsilon alpha epsilon n plus alpha upon f dash epsilon n plus alpha. So alpha alpha cancel हो जाएगा. So epsilon n plus 1 is equal to epsilon n minus f x n f epsilon n plus alpha upon f dash epsilon n plus alpha हो जाएगा. सो बाई टाइलर एक्सपेंशन थ्योरम हम इसको टाइलर थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे. फार्मूला एफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एक्स एफ डेज अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेज अल्फा प्लस डैश 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 इन इक्वेशन. सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तब epsilon n plus 1 is equal to epsilon n minus f alpha plus epsilon n f dash alpha plus epsilon square n upon 2 factorial f double dash alpha plus dash 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 upon f dash alpha plus epsilon n f double dash alpha plus epsilon square n upon 2 factorial f triple dash alpha plus dash dash dash. So neglecting the epsilon square and the higher power of epsilon n. Also alpha is exact root, so f alpha is equal to 0. Put in equation f alpha is equal to 0 and neglecting higher power. So epsilon n plus 1 is equal to epsilon n minus epsilon n f dash alpha upon f dash alpha plus epsilon n f double dash alpha. Epsilon n plus 1 is equal to epsilon n f dash alpha plus epsilon square n f double dash alpha minus epsilon n f dash alpha upon f dash alpha plus epsilon n f double dash alpha. So cancel off epsilon n f dash alpha minus epsilon f dash alpha, and epsilon n plus 1 is equal to epsilon square f double dash alpha upon f dash alpha plus epsilon n f double dash alpha. So epsilon n plus 1 is equal to epsilon square n f double dash alpha upon f dash alpha. f dash alpha कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस epsilon n f double dash alpha upon f dash alpha. सो हो जाएगा epsilon n plus 1 is equal to epsilon square n f double dash alpha upon f dash alpha. सो हम जब इसको इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 पावर में हो जाएगा. सो 1 प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डेज अल्फा अपन एफ डेज अल्फा की पावर -1. एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर एन एफ डबल डेज अल्फा अपन एफ डेज अल्फा इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन एन एफ डबल डेज अल्फा अपन एफ डेज अल्फा प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एन इंटू एफ डबल डेज. सो प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर इज इंटू एफ ट्रिपल डेज अल्फा अपॉन एफ डेज अल्फा की पावर होल स्क्वायर प्लस डैश 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 एप्सिलॉन एन प्लस 1 नियरेस्ट एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डेज अल्फा अपॉन एफ डेज अल्फा हो जाएगा. सो कांस्टेंट एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डबल डेज अल्फा अपॉन एफ डेज अल्फा जो है कांस्टेंट हो जाएगा इज इक्वल टू एम कांस्टेंट. तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एम एप्सिलॉन एन स्क्वायर हो जाएगा. सो नेक्स्ट हो जाएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एम. ये हमारा इतना था. सो एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एम एप्सिलॉन एन स्क्वायर. एप्सिलॉन एन प्लस 1 प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एन स्क्वायर हो जाएगा. सो ईरर प्रोपोर्शनल टू प्रीवियस ईरर स्क्वायर. जो ईरर है एप्सिलॉन एन प्लस 1 वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रीवियस ईरर स्क्वायर के. सो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड इज़ 2 क्योंकि इसका स्क्वायर आया है, अतः रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड इज़ 2. Thank you for watching.